Hello, hello, hello. Welcome back. Hello, hello. Namaste. Adab, Sat Shri Akal. Welcome back to Boys in Blue 9320, the DESI home for all things for treble winners Manchester City. One club, 1 year, five trophies. That's the 115 we are proud of. Yes, we are back. I mean, it's been more than 2 months कि कुछ हमने बनाया नहीं because I had my own personal setbacks and personal problems. इसलिए I thought to focus on them and I had to do away with the channel. But I'm really glad कि I've got received a lot of messages about whether things are going on well, कुछ आ नहीं रहा है. And I just told them to wait for a couple of days. दिन महीने में बदल गया और अब finally I think so this is the time where I can give some attention or and would increase the span to the channel. And I think that this is the perfect month because this is probably the busiest month in footballing history for any club who's competing in 3 competitions. And I think the month has started and बहुत कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ होने वाला भी है. And this is exciting. And title run in के बारे में I think so I'll talk separately. I'll make a separate video about this. And then I think so our run in show, the title talk, वो भी इस हफ्ते I'm trying to do an episode on that as well. कब maybe एक दो दिन में या 3 दिन में शायद we could arrange something about it because it's being crazy वहाँ जो चल रहा है. जैसे हम कहते हैं ना, even like movies या फिर आप मीडिया में कहो कि हर फ्राइडे किस्मत बदलती है, वैसे अब हर संडे किस्मत बदल रही है. बट मोर अबाउट दैट लेटर. आज हम सिर्फ बात करेंगे चैंपियंस लीग के बारे में. आज हम बात करेंगे द रियल campaign of the UCL winners for 2022-2023 quarterfinals, first leg at Santiago Bernabeu against Real Madrid, 14 times UCL winners. I mean, अगर और एक्चुअली मैंने ड्रॉ देखा था बिकॉज आई वाज इन अ वेरी रिमोट प्लेस एंड मुझे एक दिन बाद पता चला, ड्रॉ के दिन में पता चला कि वी हैव ड्रॉन रियल मैड्रिड. एंड माय फर्स्ट थॉट जब मैंने ड्रॉ सुना कि दिस इज बेसिकली फॉर मी लाइक अ वेरी इट्स अ टू गुड मैच फॉर अ क्वार्टर फाइनल. ये I think so. Obviously, out of all the 4 games that drawn, this will gain the more traction. Neutral fans say because City Real Madrid is like the dream at the quarterfinal or semi-final. जो सब वेट करते हैं because this is basically like in cut to cut, जैसे होता है ना, एक एकदम कट टू कट चलने वाला गेम है जहाँ पे आप ये प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते at this stage की before even the ball gets kicked कि कौन फेवरेट्स है. बिकॉज इवन ऑप्टा ने भी सिटी को 36% दिया है और रियल को शायद 35.8 और सिटी को शायद 36.2 टू वेरी प्रिसाइज दिया है. तो it's very difficult to predict कि ये किस साइड भारी है. तो और ऐसे गेम्स ना बहुत कम देखने में मिलते हैं जहाँ पे आप बिफोर द बॉल गेट्स किक्ड आप एकदम डाउट में रहते हो कि इस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है और या उस टीम का पलड़ा ज्यादा भारी है. इवन बाय कंसिडरिंग कि भाई ये होम गेम है रियल मैड्रिड के लिए, बट स्टिल आई थिंक सो सिटी इज वेल इंडोन्ड इन दैट गेम इक्वली एज रियल. बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से it would be an interesting match for sure over 180 minutes. अगर हम पिछले साल की बात करें जहाँ पे सिटी miraculously got a 1-1 draw, all thanks to Kevin De Bruyne's thunder bastard effort, जिसकी वजह से जो एक फाउंडेशन सेट किया for that humiliation that we have slapped Real on their faces with that 4-0 victory. और मतलब आई थिंक सो उनका एक तरीके से घमंड और गुरूर को एतिहाद की ग्राउंड में गाड़ के भेजा. तो और यही उसी इरादे से आई थिंक सो अभी भी हम उतरने वाले हैं बिकॉज वी आर द चैंपियंस ऑफ यूसीएल, इट्स आवर कैंपेन. तो और रियल मैड्रिड मेरे हिसाब से नहीं, मीन दैट्स प्रीटी ऑब्वियस कि वो रिवेंज के लिए आएंगे बिकॉज जो लास्ट टाइम हमने एक साइकिल तोड़ा उनका ऑफ लिटरली टेकिंग अ टीम लाइक जस्ट अ टीम कि वी आर जस्ट फेसिंग अ पर्टिकुलर टीम इन क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल बिकॉज
all they look for is eye towards final and get the trophy, and that's how they collected those 14 titles in their name. But अब अगर आप कोई भी रियल मैड्रिड की फैन बेस, एक लॉजिकल फैन बेस से पूछो, so they also have the reservations कि यार सिटी को फेस करना है, it won't be as easy even if it's in their home. They're confident but they're cautious about it कि at this stage घर पे भी ये कुछ भी कर सकते हैं. और मैं भी ऐसा मानता हूँ कि थिंग्स कैन गो बोथ वेज. इट्स नॉट, ये कोई सर्टेन नहीं है, गिवन नहीं है कि जस्ट बिकॉज आप फर्स्ट लेग सैंटियागो में खेल रहे हो तो मतलब रियल आपको कुछ करने ही नहीं देगी. आई थिंक सो देयर विल बी चांसेस जो सिटी को मिलेंगे फॉर द फॉर अराउंड 20-25 minutes or more than that to dominate those spaces and kind of make something out of it. And even though पिछले साल का जो क्वालिटी था और इस साल की क्वालिटी में फर्क है, बिल्कुल है. गुंडोगन नहीं है, गुंडोगन का नहीं होना बहुत बड़ा मिस है, बिकॉज फर्स्ट लेग में जो भी डर्टी वर्क था वो गुंडोगन के थ्रू था. इवन गुंडोगन असिस्ट भी किया था केविन डी ब्रुयने को. इस साल गुंडोगन नहीं है. इस साल अगर आपके पास जो चेंज है पिछले लाइनअप में अटैकिंग में, आपके पास फुल फोर्डन रहेंगे तो वो एक अलग डायनामिक देगा इस पूरे फिक्चर को. लास्ट सीजन की बात करो तो मेरे हिसाब से सिटी ने रियल मैड्रिड को फिजिकलिटी में या इंटेंसिटी में दोनों में आउटमैच किया था, एंड दैट लेड टू अ कैंपेन जिसकी वजह से हम ट्रेबल जीते. एंड इस सीजन विद जूड बेलिंगम कमिंग इन एंड with Carlo Ancelotti giving more freedom than earlier to the players to show their individual brilliance, I think so इस बार उतना easy नहीं रहेगा जितना easy हमने पिछले साल बना दिया था. All thanks to the second leg and then first leg में जो हमने से अपना ग्राउंड होल्ड किया, तो इस बार देखना और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि सिटी इस रियल मैड्रिड से कैसे पार पाती है. स्टैट्स की बात करें तो टोटल मिला के रियल और सिटी के बीच में 10 गेम हो रखे हैं, जिसमें से रियल 4 गेम जीता है, सिटी ने 3 गेम जीते हैं और 3 गेम ड्रॉ हुआ है. बस सैंटियागो बर्नाब्यू पे 5 में से सिटी ने सिर्फ 1 जीता है, वो भी 1920 सीजन में, ऑल थैंक्स टू करंट आर्सेनल फॉरवर्ड गैब्रियल हेजूस और तालिस्मान केविन डी ब्रुयने की पेनल्टी के भरोसे वो गेम हमने जीता. बट अभी फर्स्ट लेग बर्नाब्यू में होने की वजह से सिटी को थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा. और ये तो सबको पता है कि रियल मैड्रिड का सिर्फ ला लीगा में ही नहीं पूरे यूरोप में बेस्ट डिफेंस चल रहा है. देखो, दे हैव कंसीडर्ड ओनली 20 goals in this season, 4 less than Arsenal actually, which speaks a lot. And सिटी का जैसे अभी अगर हम अक्टूबर से दिसंबर का फॉर्म देखें जो बहुत ज्यादा खराब था, एंड देन जनवरी से दे आर कमिंग बैक इनटू द प्राइम सिटी. एंड पिछले हफ्ते जो हमने देखा क्रिस्टल पैलेस और एस्टन विला को 4-4 गोल चपेट दिए. They scored 8, and even though they conceded 3, but they scored 8. So you still, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि this form would be carried towards that, because जो टीम हम खेलने जा रहे हैं वो टीम लाइक अगर ये एस्टन विला और क्रिस्टल पैलेस बेस कैंप है तो वो माउंट एवरेस्ट है. तो इतना फर्क है दोनों टीम्स में. बट एक तरीके से जो आप कह सकते हो कि मोमेंटम जो है इस टीम का वो शायद प्लेन कर सकता है फेवर में. जैसे ये भी बात कही जा रही थी कि रियल मैड्रिड ने पिछले हफ्ते एक गेम नहीं खेला बिकॉज ऑफ कोपा डेल रे ला लीगा को रोक दिया गया था, तो उनको 8 या 9 दिन का ब्रेक मिला था, जबकि सिटी 3 दिन बाद खेलने आ रही है सैंटियागो बर्नाब्यू पे. सो लॉट ऑफ द चैटर हैज बीन गोइंग ऑन कि सिटी फ्रेश नहीं होगी. बट अगर हम दूसरा एंगल से देखें तो सिटी कंटिन्यूसली खेल रही है, तो एक तरीके से मेंटली वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है टू फेस दिस फिक्चर. तो दिस कुड गो बोथ वेज, क्योंकि रियल मैड्रिड सिंस 9 दिन से नहीं खेली है, तो वो हल्का सा एक तरीके से कह सकते हैं कि लैक्स आ सकता है. बट देन सिचुएशन ऐसी है कि उसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती नहीं है. और सिटी को आदत है ये 2-3 हर 3 दिन 4 दिन में खेलने की. ये हम पिछले कई सीजन से करते आ रहे हैं, सो ये नई बात नहीं है. पिछले सीजन भी किया था,
इस सीजन भी करेंगे, आगे भी इंशाल्लाह होता रहेगा। तो आई आई डोंट थिंक दैट कि वो एक फैक्टर प्ले करेगा अगर अगर कुछ भी सिटी के फेवर में नहीं जाता है, बिकॉज वी आर मेंटली वी हैव बीन यूज्ड टू सच काइंड ऑफ क्रैम्प्ड शेड्यूल, क्योंकि आप हर साल 3 टाइटल के लिए जाते हो in by the month of April May में, तो आप मतलब now you're mentally prepared and Guardiola demands such level of siege mentality from its players कि आपको हर 3 दिन में अपनी परफॉर्मेंस का लेवल ड्रॉप उतना ही रखना पड़ेगा या फिर और उसको एलिवेट करना पड़ेगा इन गेम्स लाइक दिस, इफ यू वांट टू अचीव दैट ग्लोरी, इफ यू वांट टू बी कॉल्ड चैंपियंस एवरी ईयर नाउ एंड देन। तो ये मैं मतलब उसको इतना तवज्जो देना नहीं चाहूंगा या फिर उसको इतना मतलब इतना फोकस नहीं करूंगा कि 3 दिन की वजह से या 2 दिन की वजह से टीम में फर्क पड़ सकता है, बिकॉज ये टीम बहुत केपेबल है टू फेस ऑन एवरी फ्रंट। आई थिंक सो ऑल्सो अगर हम इंजरी सिचुएशन की बात करें तो थोड़ी बहुत ट्रिकी सिचुएशन है विद सिटी इन पर्टिकुलर, बिकॉज काइल वॉकर नहीं है, आपके पास नेथन आके नहीं है, और आपका डिफेंस इस सीजन पहले से ही बहुत ज्यादा क्वेश्चनेबल रहा है। डिफेंस आपका इस सीजन का सबसे वीक पॉइंट रहा है, और आपके पास दोनों फुल बैक्स नहीं है, और आपको ये पता है आपके सामने आप रियल मैड्रिड में आपको विनिशियस जूनियर और रोड्रिगो दोनों को फेस करना है, और दोनों के सामने फर्स्ट चॉइस फुल बैक्स होना जिन जो आपको अश्योरेंस दे सकते हैं कि इन दोनों को आप टैकल कर सकते हो, वो नहीं है। तो वो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है विद सिटी के लिए। एंड जॉस्को ग्वार्डियोल को लेके अभी न्यूज आई है कि इवन दो वो ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल कर चुके हैं, आई मीन, बट गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो डाउटफुल है, which clearly means that हमारे पास Manuel Akanji as a bona fide fullback to play in either of the flanks, and this, in my opinion, could also mean like a big opportunity for someone like Rico Lewis to handle on the right. Uh, I don't know how would that work, because whether Rico Lewis will play inverted and then the Stones have to go on right to face विनिशियस जूनियर, या फिर अगर रिको लुइस राइट पे रहते हैं और स्टोन्स मिडफील्ड में आते हैं, अकांजी को रोड्रिगो को फेस करना पड़ता है, अकांजी राइट में जाते हैं, तो वो तो कल ही पता चलेगा, बिकॉज ये कनंड्रम में से स्पेकुलेशन ही कर सकते हो, बिकॉज एज गार्डियोला आल्सो मेंशन दैट कि काइल वॉकर अगर फिट होता तो बोनाफाइड चॉइस था टू फेस विनिशियस जूनियर, बट उसके ना होने की वजह से अब हमें सॉल्यूशंस ढूंढने पड़ेंगे। तो अब इन सॉल्यूशंस में से या फिर कुछ और सॉल्यूशन निकलता है कल के मैच में ही पता चलेगा, बट अभी मेरे हिसाब से शायद रिको लुइस के लिए बहुत बड़ा मौका हो सकता है, और रिको लुइस ने पिछले 2 गेम्स में अगेंस्ट एस्टन विला एंड क्रिस्टल पैलेस अपनी अपना मतलब पोटेंशियल प्रूव किया है दैट इफ गिवन अ चांस ही कैन डू वंडर्स विद इट, एंड दिस आई थिंक there is no bigger opportunity for him than this to hold on and make a difference. And अगर भगवान करे अगर विनिशियस जूनियर को इसने रोक दिया, this would be the news all over Europe in terms of who is, and I think so वो उसका एक इंट्रोडक्शन भी कह लो या फिर एक वो कह दो कि भाई आई एम हेयर वाला मूवमेंट भी हो जाएगा। अगर मैं कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस की बात करूं अबाउट द गेम, आई थिंक सो जैसे मैंने पहले भी कहा था विनिशियस जूनियर, आई थिंक मेरे लिए इवन दो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट जूड बेलिंगहम, आई मीन राइटली सो, बिकॉज पूरा का पूरा मटेरियल रहता है जूड बेलिंगहम के अराउंड सेटल्ड है अराउंड। एंड जैसे अगर इस गेम की बात इस गेम में जो एक डेफिनेशन कहा जाता है कि दिस इज ऑल अबाउट मिडफील्ड कंट्रोल वर्सेस आपका फ्रीडम, जहाँ पे कार्लो एंचेलोटी लिटरली फोकसेस मोर ऑन प्लेयर्स विद इंडिविजुअल ब्रिलियंस, जो हमने पिछले सीजन में देखा था, बट देन सेकेंड लेग में गार्डियोला काइंड ऑफ ने उस पूरे टैक्टिक का कचरा करके उसको एकदम कूड़े में फेंक दिया। बट इस बार भी वही रहेगा मेरे हिसाब से कार्लो एंचेलोटी का, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक तरीके से क्लैरिटी दी है कि इस टीम का लेवल इन टर्म्स ऑफ प्लेयर पोटेंशियल बड़ा है,
This is not the same team that had faced last season. Last season Benzema था, इस season उनके पास different players है. इस season उनके पास वो players है which are more hungry, who know about the gravity of the situation. तो इस बार वो उम्मीद करते हैं कि परफॉर्मेंसेस बेटर होंगी एज कम्पेयर टू लास्ट सीजन. और जैसा मैंने कहा कि इस टीम के पास एक एक प्लेयर ऐसा है जिसके पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस क्रिएट करने का पूरा पूरा पोटेंशियल है, पूरी कैपेबिलिटी है, चाहे वो विनीशियस जूनियर हो, चाहे वो रॉड्रिगो हो, चाहे वो जूड बेलिंगम हो, चाहे वो कामाविंगा हो, चाहे वो चुआमेनी हो, चाहे वो वालवर्दे हो. लाइक एवरीवन राइट फ्रॉम योर front first and foremost attackers till the last line of your defense, सबके पास कुछ ना कुछ एक वो कहते हैं ना तुरुप का इक्का रहता है टू चेंज द गेम. और वही सिटी को मैनेज करना है टू नॉट लेट दैट हैपन. एंड आई थिंक सो दैट्स व्हाई मेरे हिसाब से मिडफील्ड बैटल बहुत जरूरी होगी. जिस हिसाब से रियल मैड्रिड आपके मिड ब्लॉक में बैठती है कि वो टीम को वो पूरा पोजीशन डोमिनेट करना चाहती है, वो बॉल दूसरे को देना ही नहीं चाहती है. और सिटी को यहाँ बॉल जीतने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी. और मेरे लिए इसी हिसाब से आई थिंक सो बर्नार्डो सिल्वा वुड बी द की फॉर दिस गेम. बिकॉज जैसे पिछले जो इवन सेकंड लेग में और बोथ लेग्स में आई थिंक सो बर्नार्डो सिल्वा हैज डन ब्रिलियंट जॉब ऑफ बीइंग ऑल ओवर द पिच, हेल्पिंग सिटी इन वेरियस प्रोपोजिशंस. चाहे वो आपको काइल वॉकर को एक्स्ट्रा सपोर्ट देना हो टू मैनेज विनिशियस, या मिडफील्ड में रॉड्री के साथ ड्रॉप इन करना हो टू विन बॉल्स. और इस बार वो चीज उन्हें लगातार करनी पड़ेगी, वो चीज उन्हें बहुत इफेक्टिवली करनी पड़ेगी बिकॉज वॉकर नहीं है. और अगर रिको लुइस को आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है टू गो 1-to-1 विद विनिशियस जूनियर, तो आपको उसे भी सपोर्ट करना पड़ेगा. सो एंड नॉट ओनली दैट, आई थिंक सो अगर आपको रॉड्री के साथ भी ड्रॉप इन करना पड़ेगा, रॉड्री कम्स फॉरवर्ड एंड देन पिवट में शायद आपको ड्रॉप इन करना पड़ेगा टू कीप टू नॉट लेट दोस ट्रांजिशंस हैपन. तो वो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. बर्नार्डो सिल्वा का रोल इज वेरी लाइक उस प्लेयर का चलना बहुत हद तक सिटी के फेवर में बहुत चीजें पुश कर देता है, और उसका ना चलना भी अपने उसका ना चलना गोज अदर वे. तो आई थिंक सो दैट विल बी इन माय व्यू देखना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हाउ वुड बर्नार्डो सिल्वा फेयर इन दिस गेम. एंड इसके साथ साथ अगर हम डिफेंस की बात करें, डिफेंस में मेरा कंसर्न अब रूबेन डियाज को लेकर थोड़ा बढ़ता जा रहा है. बिकॉज दिस इज नाउ प्रीटी एविडेंट दैट रूबेन डियाज से वाइड डिफेंडिंग नहीं हो पा रही है. पीएल में हमने बहुत इंस्टेंसेस देख लिए हैं, स्पेशली चाहे वो बिग गेम्स हो या इवन इन आपके रीसेंट जो गेम्स हुए क्रिस्टल पैलेस या एस्टन विला, जहाँ पे बहुत अनकंफर्टेबल थे. और ये सिचुएशन इस बार भी क्रिएट हो सकती है. तो वहां पे ध्यान देना पड़ेगा कि दियाज से कोई गलती ना हो जाए जिस वजह से शायद वो भारी पड़ जाए हमें. तो डिफेंसिवली स्ट्रांग होना, डिफेंसिव रेजिलिएंट होना, काफी कुछ इस मैच को हमारे फेवर में रख इस पूरे लेग को हमारे हमारे फेवर में या फिर रखने के लिए काम आ सकता है. बिकॉज सेकेंड लेग इतिहाद में है, सेकेंड लेग और इतिहाद में गेम को लेके जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्ट उसके सिटी के लिए. इस गेम को ना लूज करना, और अगर लूज भी करो तो इतना भारी लूज नहीं करना कि आपको इतिहाद में कवर करते करते पसीने ही आ जाए और कर भी ना पाओ. बिकॉज दैट वुड बी द एंड ऑफ योर यूसीएल कैंपेन. सो ये लेग का रिजल्ट बहुत कुछ आपके अगले लेग के लिए टेम्पो सेट कर सकता है. और सिटी के जो डिफेंसिव इश्यूज है वो इस मैच में क्रीप इन ना हो. बिकॉज रियाल आपको स्टडी कर चुकी होगी, जानती है कि अगर इन्हें काउंटर पे हिट करेंगे, और इनके पास तो भाई पेस दोनों फ्लैंक से पेस है, विनिशियस और रॉड्रिगो दोनों में पेस ही पेस है. तो अगर जरा सा भी आपने इनको बॉल कैरी करने का मौका दे दिया और फाइनल थर्ड में आपने इनको फ्रीली एंटर करने का मौका दे दिया, तो फिर छोड़ेंगे नहीं है आपको. तो डिफेंसिवली रेजिलिएंट होना, डिफेंसिवली एस्ट्यूट होना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए. और फिल फोर्डन बिकॉज पिछले सीजन में नहीं खेले, आई थिंक सो दैट वुड बी लाइक अ वेरी डिफरेंशियल फैक्टर फॉर मी. कि और फिल फोर्डन अभी एट दिस पॉइंट ही इज एट द टॉप ऑफ हिज गेम. देयर हैज आई मीन अगर कोई
एक स्टैंड आउट प्लेयर रहा है सिटी के लिए अदर देन आवर रेगुलर्स, तो फिल फोर्डन हैज बीन देयर एंड this game making a difference is this game would be a huge statement in Europe, in the world football, and I think so nothing can go bigger than this, nothing can go better than this. So I expect a lot from Phil Foden. I expect a lot of like going one on one with probably आपके रूडिगर या आपका चुआ या चुआमेनी, तो इसलिए I think so Foden has to step up in this game. This is extremely crucial for him, for the club, and for this campaign in particular. Uh, बाकी आई थिंक सो एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी निकला है अबाउट येलो कार्ड्स इन पर्टिकुलर कि जूड बेलिंगम, एडुआर्डो कामाविंगा, ऑरेलियन टुचेमेनी एंड आपके विनिशियस जूनियर, इन चारों में से या इन चारों को ही आई मीन अगर इन चारों को या फिर किसी को भी एक भी येलो कार्ड मिला, वो सेकेंड लेग के लिए सस्पेंड हो जाएगा। और सिटी में ये सौभाग्य रूबेन डियाज को दिया गया कि अगर रूबेन डियाज या फिर आई मीन आई थिंक सो वी कैन कॉल इट दुर्भाग्य रादर देन सौभाग्य अबाउट दिस, कि अगर रूबेन डियाज को भी एक येलो मिला तो वो भी सेकंड लेग के लिए सस्पेंड हो जाएंगे। तो इस चीज के लिए आई थिंक सो जैक ग्रिलिश से बेटर कोई होगा नहीं टू गेट on any of these nerves and try to draw a foul from them and get a yellow card, and इन चारों में से अगर एक भी जाता है, सस्पेंड होता है सेकंड लेग के लिए, दैट विल बी अ बिग बिग बूस्ट टू सिटी। एंड आई होप चारों में से किसी का पत्ता कटे तो विनिशियस जूनियर का ही पत्ता कटे, बिकॉज उसका नहीं होना सेकंड लेग में वो रियल मैड्रिड के कह सकते हैं ना उनकी चेस्ट पे मुक्का मारने के बराबर है, और अभी बहुत जोर से मुक्का मारने के बराबर है। तो लाइक दिस इज द गेम वेयर एवरीथिंग इज ऑन द स्टेक आई थिंक सो। या जैसे पिछले सीजन हमने जब बायर्न के अगेंस्ट खेला था, बायर्न के अगेंस्ट भी जब फर्स्ट लेग में वी वन 3-0, आई थिंक सो वहां से जो एक टाइड था वो हमारे फेवर में आना शुरू हो गया था कि क्या ये टीम उस साल चैंपियंस लीग जीत सकती है जो अंत में हमने जीता। इस बार ये गेम शायद वो हवा पलट सकता है, बिकॉज अभी भी लोग कह रहे हैं कि इवन दो सिटी आर फेवरेट्स बट they still look to this club with doubts. You know, they're favorites, but this is not that team that won last year. So they do have their doubts. They're still not ruling us out, but they still have their doubts. तो वो आपको उन डाउट्स को धीरे धीरे मिटाने के लिए ये पर्टिकुलर फिक्चर में टिके रहना या जीतना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इवन दो आई डोंट थिंक, अगर आप गार्डियोला का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो तो गार्डियोला का प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ बोला है कि हम पिछले जो फर्स्ट लेग में हुआ था उस सेटअप से नहीं आएंगे। अगर रियल मैड्रिड से जीतना है तो हमें उन्हें पनिश करना पड़ेगा, हमें उनके सामने गोल्स मारने पड़ेंगे, हमें उन्हें किल करना पड़ेगा। दैट क्लियरली मीन्स इन माय लिमिटेड नॉलेज दैट गार्डियोला वांट्स टू विन दिस टाई रादर देन लाइक ड्रॉ। तो बेयर मिनिमम हो जाएगा पर वो आएगा जीतने के लिए, and because he knows that Santiago Bernabeu में जीतना like it would do wonders when the match will be in Etihad next week. तो फाइनल में ये कहना चाहूंगा कि यू नो दिस इज द गेम जहां से यूसीएल की किस्मतें पलट सकती है इस क्लब के लिए। बैक टू बैक यूसीएल सिर्फ लाइक आज की डेट में रियल मैड्रिड ने ही वो एक्सपीरियंस किया है, एंड दिस इज हाई टाइम बिकॉज इवन कल से गार्डियोला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये टीम या ये टीम जो है इसे एक यूसीएल जीतने तक ही रुकना नहीं चाहिए। They should try and they have to try to win more. So winning one UCL is not enough for Manchester City, and I also feel the same. And this match for me will kind of set the fate in tone कि आगे जाके क्या होगा, because आगे जाके अगर रियल मैड्रिड से पार भी पा लेते हो तो आपको आर्सेनल या बायर्न म्यूनिख वाले गेम में जीतने को कुछ सेमीफाइनल खेलना पड़ेगा। तो we have done the hard we have went through the hard route last season. We've been there. We won it. This time,
It's the same tale. We're going through the hard route, and I really hope that, because if no one else can do, only this team can do it. I have my full faith कि ये टीम रियल मैड्रिड को over 180 minutes साइडलाइन करके सेमीफाइनल में जाना चाहेगी. जैसे मैंने कहा, क्वालिटी में ड्रॉप ऑफ है, बट इतना भी ड्रॉप ऑफ नहीं है कि आप रियल मैड्रिड, बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल को फेस नहीं कर सकते चैंपियंस लीग में. आप हर साल चैंपियंस लीग खेलते आए हो, आपकी पेडिग्री रही है, आपको एक्सपीरियंस है to be in these situations, and you have seen the heartbreaks year in year out, and you have overcame it, and you have lifted the title last season. It's time to do all over again. It's time to give those moments all over again to the fan base. This team owes it. This team owes to the fan base. This team, the fan base have been constantly behind them, and I think so. This is the time where they really starts to work around to win this game. जैसा मैंने कहा, काइल वॉकर नहीं है, नेथन आके नहीं ट्रैवल कर रहे हैं. जॉस्को ग्वार्डियोल को लास्ट मोमेंट पे मेडिकल टीम ने क्लियरेंस दे दी है टू ट्रैवल विद द टीम फॉर मैड्रिड, बट गार्डियोला ने कहा है कि वो डाउटफुल है. तो अब देखना ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि डिफेंस में किस हिसाब से टीम सेटअप होती है, क्योंकि टॉक ऑफ द टाउन हमेशा विनिशियस जूनियर और रोड्रिगो को संभालने वाले कौन रहेंगे, ये कल रात को 1:30 बजे पता चलेगा. 12:30 आई थिंक सो, 12:30 1:30 आई क्या 12:30 पता चलेगा. एंड कल पैरेलली में आर्सेनल बायर्न म्यूनिख का गेम भी है. तो आई थिंक सो फॉर इवन फॉर जस्ट नॉट फॉर अस, इवन फॉर द न्यूट्रल्स लाइक टू वॉच चैंपियंस लीग, उनके लिए भी एक बहुत बहुत क्रैकर दिन होगा कल का. प्रेडिक्शंस की बात करो तो अगेन आई वुड रियली लव फॉर सिटी टू विन दिस गेम. Nicking it would be an absolutely wonderful result, but I'll still, by keeping that respect of Santiago Bernabeu और उसका tradition और उसकी साख को दिमाग में रखते हुए, I'll go with a very I will go with a very pragmatic Desmond 2-2 draw. लाइनअप की बात करो तो मेरे हिसाब से I think so in keeping, I'll hope to see Ortega again. I have nothing against Ederson, but Ederson ने लास्ट 1 महीने में नहीं खेला है फुटबॉल, and bringing him for 90 minutes immediately into this game would be too much of a risk. I think so. लूटन के बाद से उसे धीरे-धीरे ease on गेम टाइम देना शुरू करना चाहिए. Maybe for second leg, I think so Ederson might go and do the job, but for first leg, I think so Ortega is someone where I'll go for. Backline, और जैसे जब मैंने पढ़ा कि ग्वार्डियोल ट्रैवल कर रहे हैं, तो थोड़ी बहुत उम्मीद थी उनको कि बिकॉज जो क्रिस्टल पैलेस वाले गेम में ये कहा था मैनुएल अकांजी ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कि जॉस्को ग्वार्डियोल इज फेसिंग निगल्स. सो आई थॉट दैट मे बी शायद 1-2 दिन में ही विल बी फाइन, बट आई डोंट थिंक सो ही इज. एंड गार्डियोला हैज आल्सो कंफर्म्ड इन हिज प्रेस कॉन्फ्रेंस दैट ही इज doubtful, and keeping that in mind, I think so he will be mostly on bench. So मेरे हिसाब से बैकलाइन में होंगे मैनुएल अकांजी, जॉन स्टोन्स, रूबन डियास एंड रिको लुइस. मैंने बहुत से शाउट्स सुने अबाउट माटेओ कोवाचिच, बट आई डोंट थिंक माटेओ कोवाचिच होंगे, बिकॉज माटेओ कोवाचिच, बिकॉज अगर जॉस्को ग्वार्डियोल होते तो शायद माटेओ कोवाचिच खेलते, but then I don't think so that's happening. So Mateo Kovacic will be too much of a risk because John Stones आपके मिडफील्ड में स्टेप इन कर सकते हैं. एंड अगर बैक थ्री की बात करो तो अकांजी, रूबन डियास और रिको लुइस के अलावा कोई और ऑप्शन दिखता नहीं है एट दिस स्टेज. एंड आगे बात करो तो रॉड्री, फॉर मी, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट इट. रॉड्री, फिल फोडन, केडीबी, जैक ग्रीलिश, बर्नार्डो सिल्वा, अर्लिंग हालैंड, ये मेरे हिसाब से आउट ऑफ ऑल द players that we have on our roster, ये सबसे strongest team है to face Real Madrid. And अगर क्योंकि हम bench की बात करें तो आपके पास Alvarez है, आपके पास Doku है to change the game. अगर आपको गेम को स्लो डाउन करना है और कंट्रोल और इंटेंस करना है तो आपके पास माटेओ कोवाचिच और माथेउस नूनेस है. सो बेंच से भी आपको चीजें घुमाने के लिए प्लेयर्स अवेलेबल रहेंगे. So that's what I said. I still believe that we can take something out of it, maybe a win or a draw.
आई होप कि हम विन के साथ बाहर आए सैंटियागो बर्नाब्यू से, बट अगर एक ड्रॉ भी होता है तो फिर एतिहाद में डिसाइडेडली जाना इतना बुरा नहीं होगा। बट हार गए देन, और बड़े मार्जिन से हारे, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम, बिकॉज एतिहाद में चेज करना वुड बी टफर। एतिहाद से रिजल्ट बनाना इज इजियर। जो पिछले साल भी हमने रिजल्ट बनाया है, बनाना इज इजियर, but chase करना would be would be really tough task. And by second leg, अभी मैंने न्यूज भी पढ़ा है कि by second leg कायल वॉकर और नेथन आके का आना is looking like probability, which is a good news. So इसीलिए ये लेग में टिक के रख कर खेलना और यहाँ से कुछ भी लेके आना in terms of a draw or a win is very very important. बिकॉज शायद नेक्स्ट लेग में आपके, बिकॉज इस अभी से लेके नेक्स्ट लेग में बीच में लूटन टाउन का गेम होगा, और लूटन टाउन में भी जनरली आई थिंक सो रोटेट ही कराएगा पेप, बिकॉज सेकेंड लेग को देखते हुए। एंड सेकेंड लेग में अगर कायल वॉकर और नेथन आकी की एंट्री हो जाती है तो इट विल बी अ बिग बूस्ट, बिकॉज दैट मीन्स दैट हमारे पास पूरी स्क्वाड अवेलेबल होगी सेकेंड लेग के लिए। तो इसीलिए फर्स्ट लेग का रिजल्ट बहुत जरूरी है कि हमारे फेवर में रहे या फिर चीजें बराबर की रहे। हमारे अगेंस्ट जाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। यस, तो आई थिंक सो। एंड जाते जाते अभी रेलेवो के एंड से खबर आई है दैट चुआमेनी और रूडिगर विल बी द सेंटर बैक पेयरिंग, और जो स्क्वाड अभी बाहर आया है उनका। एंड पिछले साल भी यही हुआ था, आई थिंक सो द स्क्वाड गॉट लीक्ड, या फिर मैड्रिड ने खुद ही बता दिया था 2 दिन पहले, एंड वही स्टार्ट करे थे बोथ लेग्स में। तो जो स्क्वाड अभी आ रही है उसमें एंड्रे लूनिन, फरलॉन मेंडी, ऑरेलियन चुआमेनी, एंटोनियो रूडिगर, डैनी कार्वाहाल, मिडफील्ड में टोनी क्रूज, फेडरिको वालवर्डे और एडवार्डो कामाविंगा है। एंड आगे तो, और आई मीन जूड बेलिंगम, एंड देन आगे आपके विनिशियस जूनियर और रोड्रिगो है। सो दिस लुक्स लाइक अ 4-4-2 सेटअप, एंड आई मीन देयर इज नो सरप्राइज अबाउट दिस लाइनअप एज वेल। तो बस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम मी रिगार्डिंग the whole Real Madrid versus Manchester City UCL quarterfinals first leg. Before I sign off, first of all, a big thank you for staying with us, for showing your support on the channel, and I really apologize for not being here. I had to look forward to my personal issues and my things that have been going on around, and I think so ये टाइम थोड़ा उस पर फोकस करने का ज़्यादा ज़रूरी था। बट अभी से वी विल ट्राई टू डू रेगुलरली। आई थिंक सो मेरा इंस्टाग्राम पेज जो भी एक तरीके से मरा पड़ा था उसको भी जिंदा करने का वक्त आ गया है, तो वी विल वर्किंग ऑन दैट। तो हाँ, आई थिंक सो बाय फ्रॉम नाउ टिल द एंड ऑफ द सीजन विल ट्राई टू बी देयर, एंड आई होप दैट अभी ये कंसिस्टेंटली कर पाऊँ, और कोशिश पूरी रहेगी। ये वन ऑफ वीडियो नहीं है, आई मीन आई विल डू द रिव्यू एज वेल। So yeah, thank you so much guys for being here. आपके क्या thoughts है about the game in particular? आपके क्या predictions है about the lineup, about the score line? Do let us know in the comments below. And to do the regular drill, like the video. अगर आप चैनल पर नए हो, वो एक लाल बटन है, उस पर चाहे जूता फेंक के मारो या उस पर अंगूठा लगाओ, कुछ भी करो, बट दबा दो उसको। And for more updates, please press the bell icon and share it with your friends, your family, your loved ones. जो भी नहीं जानते हैं उन्हें बताओ चैनल के बारे में। जो भी आपके फ्रेंड्स हो और मैड्रिड स्टार्स, उन्हें भी अब ये वीडियो के बारे में बताइए, उन्हें दिखाइए, और क्या वो एग्री करते हैं नहीं एग्री करते कमेंट से बताइए। So yeah, that's it from me. See you in a bit. Thank you so much. Goodbye and city till I die. Let's go.